Hello everyone. Yeah. Good evening all of you. This is Pranjal Khatal. I would like to welcome all of you on this Boots and Crampons live series of conquering and learning the seven summits. Yeah. Hello everyone. Yeah. So we had two sessions of Everest and Aconcagua. Now today we have very heroic personality and heroic mountaineer with us. I would like to give you his brief introduction first of all, and then we'll welcome him on board. In the meanwhile, other followers also can join the live session. So, first I would like to introduce him. He is the first triple amputee who has scaled the highest peak of Africa, that is Mount Kilimanjaro, highest peak of Europe, that is Mount Elbrus, highest peak of Australia, that is Mount Kosciuszko. And all these peaks he has done with boots and crampons. So he is like a family member for us. Besides mountaineering, he is a cyclist, he is a runner. He has done cycling from Leh to Kanyakumari, which is his milestone event, and he has done lots of running events. His achievement is like he has done the Devil Circuit obstacle course, which is India's country's toughest obstacle course. He has awarded as Bharat Pratibha Puraskaram award in 2017, achieved a place in India Book of Records. So we have very heroic personality on a board. So let's welcome. I'll send him a request in a few minutes. Just a second. Yeah, he's joining. Wait for a second. Yep. Yeah, Shekhar sir, if you are listening, please accept the request. Then you will be into this live session. Yeah, his name is Shekhar Gaud. Yeah, he is on board. So hello sir. Hi. Hi. Can you hear me clearly? Yes. Yeah. Okay. Good. Welcome to Boots and Crampons. This is your family only. So you have done treks and expeditions with us. So I would like to welcome again. Yeah. Thank you. Thank you so much for giving this opportunity to bring in front of you all. Yeah, it's our honor, sir. So without wasting any time, we'll go straight to our point, straight to our session. Sir, tell our viewer that क्या हुआ था 2006 में, what was the incidents that changed your life 360 degree? Yeah, over to you, sir. Yeah. Before 2006, December 24, I'm as usual normal person like you all. But that day, whenever we हमारा लाइफ में कुछ होता है ना, तभी हमें सोचते हैं ये बुरा दिन बोलते. उस टाइम में मैं भी सोचा था that was my bad day, but now I recollected. Now I am thinking that was the good day of mine because I am alive in front of you all. Yeah. So in 2006 December 24, it's a mysterious day in my life. I don't know what happened exactly. I was sitting on wall and speaking on phone with my friends. Suddenly, one of my friends came. He pushed me out from the wall. Okay. So, ऐसे मजाक करते हैं, ऐसा पुश करते हैं, तो ऐसा हो गया. मैंने उस टाइम में क्या किया मुझे समझ भी नहीं पा रहा. कभी नीचे गिरने के टाइम में क्या करते हैं, हमें कुछ सपोर्ट के लिए सोचते हैं. तभी ना मैंने वायर को पकड़ लिया. जब मैंने वायर को पकड़ लिया तभी तक मालूम हुआ. बाद में जब मैंने उठ के देखा था, आई वॉज इन हॉस्पिटल. दैट टू इन बिहाइंड
um, dead bodies. I was on a Dead stretcher. body. Yeah, yeah. Oh, So next day morning, I woke up from there. I came by walking with that wound. Actually, literally, my right hand was like hanging meat. Three fingers like hanging like this. This one, same like this. So so after in that, that situation, oh, sorry, in that yeah, situation, they kept you in mortuary. yes. Oh, Because I don't know how they are thinking because that whichever I catch the word that is 11 kb wire. So they oh, might be they thought I was dead. okay. Later on, I woke up from there. I came back to some ward. Later on, knowing that this general ward, I struggled a lot of. I struggled much in that ward. I informed to my parents. I requested one ward guy to inform my parents and give some food for me. My parents came and they shifted me to another hospital. Uh, they shifted me to Kamrani Hospital, Narkatpalli, which is Mm-hmm. near to my hometown. Okay. There are also some tragedy happening. They're not agree to allow me to admit. So because I Mm-hmm. was almostly my right foot bottom got damaged and left foot totally gone. I'm seeing my bones and nerves in that right left foot, left leg. So And scary. so after that, my father requested and he signed bond papers and all these things, and they agreed to admit. First of all, they took me to operation theater. They decided to cut my hand till my wrist. Okay. After a few days, they again that infection is not controlled. So later on, again after four surgeries in front of you like this, my hand Oh, oh. uh, to shoulder. So after that, it remained that only. Yes, Oh, exactly. 1.5 month. There one again. The doctor came. Dr. Sharad came. He said we decided to remove your left foot also because it is um, going to infecting total your body. So I said, if you remove my leg, how can I walk? So yeah. some mystical thoughts in my mind. How can I walk? How can I survive in my life? Generally, normal life में क्या होता है तो सब लोग जो पैर दो हाथ है उन लोग को जीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मैं Yeah. कैसे जी पाऊंगा Dr. Sharath and Dr. Madhu some his teammate they treat me as a family member they treat me as a brother son like that they conveyed my mindset and they decided to remove my foot a left leg below knee. Okay. Again, there is a sad moment in my life. Again, there came all with team, and we want to remove your foot fingers of a right foot. Which foot finger? I That. don't right foot Oh, bottom. I don't have bottom. I have only fingers like this. I don't have thumb finger and right foot. oh, Totally like these, my fingers, four of oh. fingers. So it's a tragedy in my life. After that, after 6 months, I came back to home. There also जनरली क्या होता है हमें फैमिली में नहीं हमें गांव में क्या होता है तो सिंपैथी दिखाने के लिए आते हैं उस टाइम में हमें सिंपैथी नहीं चाहिए हमें सपोर्ट चाहिए कुछ भी कर Support. Yeah. सकते हैं आई नीड सम सपोर्ट दैट आई डिडंट गेट दैट टाइम I went depression I did uh, I So attempted some attempt once suicide and all these things are later on. 2007 mid I think. So I came back to from home to mobile field. My brother's mm-hmm. friend has a mobile shop. Okay. Back to mobile field. I learned everything how to download, how to repair mobile. Can you imagine me? I'm a mobile repairer, one hand mobile repairer. Oh, oh, that's amazing, and that was your first milestone too after your Yes. accident. Yes, Okay. yes. Yeah. There Please go ahead. also there are also some
प्रॉब्लम हैपन इन माय लाइफ। दैट इज आल्सो टू क्या हुआ, जब मैंने मोबाइल शॉप में काम कर रहा हूँ तो दूसरा जगह में और दूसरा शॉप बनाया था। उस शॉप में भी क्या हुआ, तो जब विजयवाड़ा हाईवे 4 व्हील लाइन बना रहा है उस टाइम में मेरा शॉप भी कट हो गया। फिर मैं डिसअपॉइंट हो गया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक आगे जाने के लिए एक रास्ता मिल गई, वो भी खत्म हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। सो आफ्टर कुछ महीने के बाद में दूसरा आइडिया आया था, उतना पैसा नहीं है दूसरा शॉप बनाने के लिए। मैंने सारे पेपर्स निकल के, मेरा लैंड का पेपर्स निकाल के मेरे पापा के बोल के मैं लोन से कुछ लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था। उसी बैंक से दूसरा शॉप बनाया। तो उस टाइम में मैंने सेल्स एंड सर्विसिंग भी करा था। उसी टाइम में Okay. और कुछ नया सीखने के लिए मुझे ज़्यादा इच्छा है। उस समय मैं क्या किया, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर Okay. बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये दोनों के बीच में क्या है, हम कर सकते ना कर सकते, इसके बारे में मैंने गूगल में ढूंढ लिया, या मैं कर सकते नहीं कर सकते। मैं साबित किया था मैंने हार्डवेयर कर सकता हूँ, मतलब जो प्रॉब्लम होता है मैं इसको रेक्टिफाई कर सकता Right. हूँ बोल के मैं Right. सीख लिया। इसके बाद 2014 में अचानक से मुझे एक आदमी ने मुझे ये एयरटेल हैदराबाद मैराथन को बुलाया था। हिज Oh. नेम इज दस्तगिरी। आई डोंट नो Oh. उन्होंने Yeah. कैसे मुझे पहचान लिया, मैं आई एम एम्पिटी। मुझे इनवाइट किया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, व्हाट इज मैराथन, बस इन्होंने Okay. बोला था, So until इन्होंने then बोला you have until then नो you haven't run in your life before accident also. नो। Oh. सो नॉर्मल रनिंग कॉम्पिटिशन होता था Okay. स्कूल में पढ़ने के टाइम में, Yeah. मतलब Yeah. मुझे Yeah. मैराथन क्या होता मुझे समझ भी नहीं पाया था। Okay. Okay. उन्होंने Okay. किया था। इसके बाद इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके पहले मैं जयपुर फुट लगाया था किंकोटी हॉस्पिटल में, और फाइबर का फुट लगाया था, उसी से मैं चला रहा। so, इसी फुट से मैंने एयरटेल हैदराबाद मैराथन को 2014 में आया था। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स लाइफ। आई स्टार्टेड माय स्पोर्ट्स लाइफ 2014 5 किलोमीटर्स रनिंग इवेंट। मैंने वो जयपुर फुट पहन के भाग रहे हैं उन लोग के देखे, क्योंकि मुझे इतना इंस्पायर हुआ था। मैंने सारे लोगों उधर कैसे Yeah. कुछ लोगों Why? को दो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसा स्पाइनल कॉर्ड वाला भी व्हीलचेयर में ऐसे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं Oh. कर सकता, मेरे पास एक पैर है एक हाथ है, अच्छा है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दे मोटिवेटेड मी। सो Okay. फाइनली 5 किलोमीटर्स कंप्लीट किया था। वो फाइनल 5 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद जब मैंने पैर निकाला था उस टाइम में मेरा स्टम्प खराब हो गया, मतलब जो स्वेट से स्वेलिंग आ गया था, ब्लड निकल रहे, उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम देखा था मैंने। Yeah. ये होने क्या? के बाद या वहाँ डॉक्टर मोहना गांधी ने मुझे देख लिया। Okay. उन्होंने मुझे, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोल के उन्हें रिकग्नाइज किया था। मुझे उन्हीं के ऑफिस में लेके गए, उन्हें मुझे खुद ही फायर दिया था जब मैंने अभी पेन के चल रहा है, तो Okay. इम्पोर्टेड लेग दिया था अच्छा, उसी समय। so they sponsored you. यस, Okay. Yeah. Yeah. एक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर। Yeah. Okay. So after that, I started my running life, and I started 5 kilometers, 10 kilometer, 15 kilometer. I did 21.2 kilometers. So that was my first half marathon in Dehradun. That was low temperature, high Okay. altitude. So I would like to stop you for a while, because you are saying this is like normally 5 किलोमीटर यहाँ नॉर्मल पर्सन हाफ जाता है. You have done after your accident, after so much you have gone through, you have started the running, and now you are telling that 5 kilometer, 10 kilometer, and 21 kilometer. It's just like tip of spoon or something like that. So it's really amazing, and salute for that, sir. Thank you. Yeah, go ahead. Let's run till now, till the date, I did 88 running events in all over India, Oh, including 5 kilometers, 10 kilometers, and half marathons. After oh, that's that, wonderful. आफ्टर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी, मैं क्या कर सकता हूँ, साइकिलिंग चलाता हूँ। तो Yeah, मुझे yeah. इतना, That was the next question. How did you introduce to cycling and all this thing after that is running? also, Yeah. yeah, that is also motivated me. I motivated by Dr. Mohana Gandhi. Okay. Total my life, total my life is Dr. Mohana Gandhi role is big in my life.
Oh, He gave it me another life to prove yeah, myself. yeah. We can see that, I and yeah, we can see इन्होंने that. मुझे साइकिल इन्होंने साइकिल दिलाया था मुझे द बिटवीन Oh, साइकिल दैट वाज नॉन गियरेबल आई वेंट I Decathlon. got it from Decathlon, Oh, Shamshabad yeah. Decathlon. Okay. Yeah, So with great. Go that I ahead. practiced a lot. With that I practiced a lot, 5 kilometers, 10 like this. And one day, me and Kiran Khanojia did attempted a 200 kilometers bravery. Okay. Uh, that day क्या हुआ था आई वी डोंट नो इतना किलोमीटर 200 किलोमीटर कैसे कर सकता हूँ अरे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है मैं Yeah. 200 किलोमीटर कैसे चला सकता हूँ मैंने यही यही किया था किरण कनौजिया इन्होंने चलो इन्हें करने के लिए सोच रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ इन्हें भी मेरे जैसे एम्पैथी है इन्हें करने के लिए सोच रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ जस्ट Yeah. she motivated me. So why Hmm. don't I do? So I started early morning 5 o'clock. We went HBC Oh, Gachibowli. okay. We gear up and we're ready to start. So no, I met many people there, good people and many experienced person about cycling. Yeah, So वहाँ Romil से sir मैंने was. Yeah, Romil sir is saying he was yes there also. Yeah. I met him there on Yeah. that day. Okay. So the 200 kilometer, I didn't complete the 200 kilometers, but I did only 169 kilometer. We both That have is done that 169 is not kilometers. only. That is not only, sir. 169 is a huge. For But those who don't once, cycle, 169 is like a huge, because in one day only, yes, 12 hours I took. Oh, that is wonderful, sir. That is No, I was highly sad commended. that time. Yeah. That I was sad. Why don't I? Okay. What happened to me? Why didn't I did 200 kilometers? Why I stopped 169 kilometers? Okay. That makes me feel bad. So next time I should complete 200 kilometers. I keep trying. One day I did 200 kilometers driving. Oh, that's wonderful. That's That is my commendable. cycling. Yeah, cycling. I started my cycling that time, and ये करते करते मुझे क्या हुआ? Why don't I go from Kashmir to? Why don't I do Kashmir to Kanyakumari cycling? Yeah. So So नॉर्मल yeah, आदमी ने बहुत लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ huh, एवरी डे एवरी टाइम मैंने क्या सोचता हूँ जो नहीं करते हैं मैं करना है इट मेक्स मी definitely. हैप्पी सो ये मुझे इंस्पायर किया था मैं करना ही करना है बस ये करने के लिए हमें क्या करना है पहले कश्मीर टू कन्याकुमारी करने के लिए मेरे पास प्रॉपर प्लान रहना है प्रॉपर गाइडलाइन रहना है प्रॉपर मैप रहना है प्रॉपर Right. साइकिल रहना है प्रॉपर मनी रहना है ये Okay. सब कुछ Yeah. मेरा बहुत ये क्या बोलते हैं it's a Yeah. difficult situation because that time Yeah. I'm working with Lemon Tree Hotel High Tech City as Okay. a medical as a CCTV monitor Oh. security department. Oh. Okay. So While how did you doing manage job, the finance? How did you manage that finances? That is the main thing, because uh, everyone wants to do this thing, but they don't know how they manage the finances and the planning thing. So tell me about that, sir. if your goal is good, if your goal is true, everything will be Oh, arranged. okay. So, Yeah. मैंने Yeah. जिस आदमी को मिला था रनिंग इवेंट्स में साइकिलिंग इवेंट में ये सारे लोग मुझे हेल्प किया था फंडिंग करने के लिए Hmm. मेरा बजट है 4 लाख रुपीस है Okay. इसमें इसमें मेन पार्ट है रूपा श्रीरामा रंजीत सर शेषक गौर सर एंड Reliance Diamond Deepak Kukuretti and Cycle Company Cycle Dinana Harpanali and Okay. रंजीत श्रीवास्तव ये सारे इंक्लूड है Yeah. इसमें इन लोग के Yeah. वहां से मैंने मेरा फाइनेंशियल इशू क्लियर हो गया इसके बाद Hmm. मैंने ट्रैवलिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए भी ये साइकिल मैंने अभी जो चला रहे हैं ट्रेक 7.3 FX
ये खरीदने के लिए उस टाइम में 80,000 रुपीज था। वो 80,000 देके मैंने खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है मेरे पास। 11,000 कमाने वाले पास उतना महंगा साइकिल खरीदने के लिए कैसे? Yeah. So मैंने एक्चुअली एवरी वीकडेज मैंने रामकृष्ण मठ को जाता था उस टाइम में। उसी रामकृष्ण मठ से मुझे अच्छा कॉन्टेक्ट मिला था। स्वामी बोधामयानंदा जी ने मुझे बहुत बड़ा आदमी को मिलाया था। इन लोग से एक आदमी राम की फाउंडेशन से मुझे एक साइकिल दिलाया था उसी पैसे से। ये साइकिल से मैंने 2016 अक्टूबर 25 को मैंने लद्दाख टू करदुंगला मैंने ट्रैवल किया था। दैट वाज -15 डिग्रीज टेम्परेचर। And in this temperature you don't feel any pain of your injuries or something because you have prosthetic legs and all this thing. So do you feel any pain? Yeah. So tell us that about that, because this is not a simple thing, Khardungla to Leh or yeah. Yeah, and most of all, that was my first trip, international trip. It's a first flight journey of mine. मेरे लाइफ में कभी नहीं सोचा था मैं फ्लाइट में जाता हूँ बोल के। So the flight journey is different and जहाँ मैंने लो टेम्परेचर में जब मैं उतरा लद्दाख में, वहाँ भी मुझे बहुत ठंड लग रहा है। उस टेम्परेचर में कभी नहीं गया था। तो वहां से मैंने आर्मी कैंप को गया था। आर्मी लोग ने मुझे, आर्मी शेख सर ने मुझे कैंप में मुझे अकोमोडेशन दिलाया था। वहां से मैंने 2 दिन वहाँ अकोमोडेशन के लिए वह रहा था। उसी टाइम में मैंने साइकिल उधर ये कैंप में चलाया था। नेक्स्ट डे 25 मैंने शुरू किया था। मेरा प्रॉपर प्लान के वजह से मैंने 25 को मैंने लद्दाख टू करदुंगला गया था। उस टाइम में मैंने, इस टेम्परेचर में क्या होता है, हमें साइकिल चलाने के टाइम में मुझे क्रैम्प्स होता है, क्रैम्प्स जो मसल पकड़ते हैं। बहुत टाइम मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत बार मैंने वो साइकिल फेंक के मैंने थोड़ी देर आराम करके फिर मैंने साइकिल चलाया। ऐसा चल के, जो साइकिल चलाने के लिए बहुत ताकत रहे ना उस पहाड़ में, क्योंकि रास्ता प्रॉपर नहीं रहता, पत्थर रहता, पूरा पत्थर रहता। तो पत्थर से हमें एक हाथ से एक पैर से चलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मगर मेरा ड्रीम इम्पोर्टेंट, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग मुझे ट्रस्ट किया था। मैं वो ट्रस्ट को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऊपर तक गया था। मैंने सुबह 6 बजे लद्दाख से स्टार्ट किया था। मैं वहाँ पहुंचने तक मैंने लगभग 4 बज गया। शाम को 4 बज गया। उतना घंटा मैंने ट्रैवल करते रहा हूँ। कुछ फूड मैंने कैंटीन से लेके गया, वही फूड खा लिया। पानी का बोतल, ये सब, पानी का बोतल भी बर्फ हो गया। Yeah. So in how many days you have completed this Leh to Kanyakumari cycling, and tell us the one special incident about that trip. Then we'll move forward to the mountaineering side. Okay, total stretch is 4,100 kilometers. I took in 68 days. I completed in 68 days. And the typical situation I had then Pang, there is Himachal Pradesh, Pang. There is a Pang place, which is last army base camp. क्योंकि वो पूरा काले कर रहे हैं, क्योंकि मौसम स्टार्ट हो रहा है ना इस टाइम में। एक्चुअली वो रास्ता भी बंद हुआ। मुझे ये आर्मी वाले सपोर्ट, ये आर्मी जवान से सपोर्ट से मुझे रास्ता खोल दिया मेरे लिए। सो हैट्स ऑफ टू देम, जय हिंद। सो उसी रास्ते से मैंने पांग में पूरा फ्रीज हो गया। वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे उठाया था वहां से, फिर आग जला के मुझे दूसरा लाइफ दिया था उधर। वहाँ से कभी मैं उतना स्ट्रगल नहीं हुआ था। बाद में आराम से चल के आया था। टोटल 68 डेज में कंप्लीट किया था 4,100 किलोमीटर। दिसंबर 28 को मैंने सबमिट किया था कन्याकुमारी में। So and you have that photo of lifting the cycle, yes, and later knowing that I'm the first triplet who went Kardungla to Kanyakumari. That's
that's a huge achievement for this. After you एक्चुअली मुझे have पता gone, नहीं कि मैंने पहले ही इसके बारे में सोचा ही नहीं है, बाद में मुझे पता चल गया है कि आई एम द फर्स्ट टू ग्लैम, नोबडी, नो वन हैज डन टिल नाउ. yeah, it's up to you. Without your dedication, it's not going to happen. It was not going to happen. So let's come to the mountaineering. How it got started, and आप कैसे introduce हुए mountaineering को? And what was your first trek? फर्स्ट ट्रिक के पहले क्या ये बताना चाहता हूँ मैंने पहले बता था, ये डॉक्टर मोहना गांधी, इनका टीम मेरे लाइफ में सबसे बढ़िया प्लेस है उनका मेरा लाइफ में. Yep. इसी क्योंकि ये दक्षिण रिहेबिलिटेशन वाले क्या करते हैं, सारे हमारा जैसे एम्पुटीज को एक जगह मिलाकर ऐसा प्रैक्टिस दे देते हैं, या मैराथन रनिंग प्रैक्टिस करते हैं, या फुटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं उन्हें. तो उसी टाइम में क्या किया, एंड रवि श्रीवास्तव इज ए एक्स पुलिसमैन, इज ए वेल ट्रेनर. इनके टीम के साथ मैंने पहले मैंने इधर गया था, मौलाली जो पहाड़ रहता है ना, मौलाली पहाड़ में मैंने शुरू किया था. दैट है, मुझे इसके ट्रैकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, रैपलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट ये लोग कर रहे हैं, इनको देख के मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. डिसेंडिंग फ्रॉम रॉक डिसेंडिंग, तो मैंने पहले एक सिंगल डिसेंडिंग करा था. इसके बाद मैंने ऊपर एक बच्चा को, डॉक्टर मोहन गांधी के बेटा को मैंने पीछे बांध कर डिसेंडिंग करा था मैंने. तो तभी मुझे मालूम हो गई रॉक्स ऑल्सो हमारा फ्रेंड्स है. इसको पैर से देखो, सब कुछ सब हेल्प कर सकते. तो इसके बाद में इसी के टाइम में हमें जब माइंड है ना, ये माइंड हमारे सॉफ्ट रहना, मतलब जो कर सकते हैं, जो भी कुछ भी कर सकते हैं. If you think positive, always will be positive. So वहां से मेरा माउंटेनियरिंग स्टार्ट हुआ था. 2018 में भरत गारू ने मुझे बोला था, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक जा रहे हैं, अब जाते हैं. ठीक है, मैं जाऊंगा. इसके बारे में पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है. 1.2 चार्ज किया था. बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स है, इसके अंडर बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स मैंने माला मैडम के तरफ से गया था उस टाइम में. इसके लिए भी उतना पैसा चाहिए, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूं. फिर से मैंने जो मुझे पहले स्पॉन्सर किया था उनके के पास गया. इन लोग मुझे, क्योंकि मैंने पहले अच्छा किया था, मैंने कंप्लीट किया था, इसी के थ्रू मुझे दूसरा स्पॉन्सरशिप मिला था. 2018 अप्रैल में गया, मई में एवरेस्ट बेस कैंप को स्टार्ट हुआ था. यस, मैं 14 डेज में एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट करा था मैं. दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप नेपाल. ओके, how was it? How was the feeling after the summiting the Kala Everest base camp? So Everest base camp is बहुत लोग बोला था, मैंने सारे इसके प्रिपेयर करने के टाइम, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देख चुका हूँ. ये एवरेस्ट बेस कैंप में बहुत मुश्किल होता है, ये सब कुछ बोल देते हैं. बट मुझे तकलीफ हुआ जैसे नॉर्मल पर्सन को उतना तकलीफ नहीं होता. मुझे जितना तकलीफ हुआ जैसे नॉर्मल पर्सन को तकलीफ नहीं होता, क्योंकि हम इच्छा से जा रहे हैं. वी लव माउंटेन्स, आई लव माउंटेन्स. राइट. Yeah. So when I landed in Lukla, that is also full of rain day. लुकला में बहुत बारिश गिर रहा है. उसी टाइम में जब मैंने वहाँ चाय पी के हम लोग गियर पहन लिया था, वहां से हम चल के जा रहे हैं. उस टाइम में क्या छोटा छोटा स्टेप्स है. उसी स्टेप्स पे कब पूरा पानी है जो याक जाते हैं ना, उसका शीट, ये सबके बारे में हमें पूरा बार बार स्लिप हो रहा है, क्योंकि मैं एक ही स्टिक पकड़ के जा रहा हूँ. दो स्टिक्स नहीं है. उस टाइम में वो भी बहुत बार स्लिप हो गया. मैंने बहुत बार चोट लगे, पैर को, हाथ को, सब कुछ हर जगह चोट लगा है, मगर हारना नहीं है, मैं करना ही करना है. मैं जब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप में हमारा इंडियन फ्लैग ऐसा उठाना है ताकि बाद में कुछ भी हो नहीं. तो सारे लोग ने बोला था एक्लेमेटेशन का प्रॉब्लम होता है. मैं कैसे भी मैंने डायमॉक्सिन टैबलेट्स कैरी किया था. मैं उसका जरूरत नहीं पड़ा था मुझे.
Right. पूरा 14 डेज में कंप्लीट करके फिर पीछे Wow. काठमांडू आ गया। Okay. So अम, that. ये Yeah, जब okay. मैंने एवरेस्ट बेस कैंप करने के टाइम में जब शेरपा हाउस दैट वाज Yeah. काला पत्थर के पास रहता लास्ट Yeah. पॉइंट आई Yeah. थिंक Yeah. सो Yeah. शेरपा हाउस आई थिंक Yeah. तो Yeah. उसी I would like to. Yeah. Yeah. Yeah, continue. Then I'll tell them because you तो are telling this very easily, and that trek is not that much easy because uneven terrain and many mountaineers has got fallen or sick during that trek because they got a problem of acclimatization as well. But you are exceptional one, and you told the real thing about this, that if you are mentally trained and mentally positive and you want to do it, then you can do it thing. But यस we yeah, but the terrain is not the plain road that you are going to run 5 kilometer or something like that. That is the elevation of Everest Base Camp we are talking. So hats off to you for that as well. So, yeah, continue. थैंक यू। हमें क्या होता है हमारा हमारे तरफ जो टीम है जब हमारा टीम कितना सपोर्ट किया मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके बारे में बहुत है हैप्पी मोमेंट्स सैड मोमेंट्स वी एंजॉयड अ Yeah. लॉट व्हाइल डूइंग ट्रैकिंग आई थॉट आई केम जस्ट फॉर अ पिकनिक व्हाइल डूइंग ट्रैकिंग Okay. So yeah, that was a wonderful experience of Everest Base Camp. And I have read about your bio that you have done solo trek after that, or before Everest, it was your solo trek of Daira Bugyal. So tell us about that. आफ्टर एवरेस्ट बेस कैंप So tell us about that. Why did you decided that thing, and how did you plan about this thing as well? Actually, I planned for a glacier trek after Okay. Badrinath. Okay. After Badrinath, there is some glacier trek. So we Vasudhara, planned that. Yeah, Vasudhara Vasundhara Falls. Falls and yes. Okay. Yeah. Yeah. So Okay. क्या हुआ हमें प्रॉपर प्लान किया था ये सारे टी शर्ट्स और सब कुछ लगाया था Uh, बैकपैक सब प्रिपेयर हो गया था जब मैंने हमें उत्तरकाशी में उतर गया उत्तरकाशी से मालूम है तभी मालूम हो गया हमें बद्रीनाथ जाने के रास्ता बंद हो गया क्योंकि बंद हो वो गया. यात्रा स्टार्ट Right. नहीं हुआ Right. Yeah. तो हमें उत्तरकाशी में रह के क्या कर सकते हैं तो हमें ढूंढ लिया था आसपास कोई ट्रेकिंग स्पॉट्स है क्या तो हमें एक सबिता बोल के एक माउंटेनियर था इनके Mm-hmm. थ्रू हमें ये दयारा बुग्याल माउंटेन के बारे में पता कर. ट्रेकिंग के बारे में पता कर लिया था वह ट्रेकिंग Okay. हमें आई फॉरगेट दैट विलेज नेम Mm-hmm. सर दयारा बुग्याल चढ़ने के लिए हमें इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है सोलो ट्रिक्स के बारे में तो Yeah. उस गांव में गया था वो गांव जाने के बाद तभी मालूम हो गया वहाँ फॉरेस्ट का फॉरेस्ट Permission. परमिशन लेना है Permission. और माउंटेन Yeah. परमिशन Right. लेना है इसके थ्रू एक गाइड को भी लेना है इसके Mm-hmm. बारे में हमें प्रॉपर प्लान नहीं है कुछ भी नहीं है एंड दैट टू माय बजट ट्रिप Oh तो yeah. उतना पैसा भी नहीं है हमारे पास क्या करूं मी Okay. एंड माय साइकिलिंग फ्रेंड सुब्रा ज्योति साहा ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल Okay. me and him, we both are tried went to climb Dayara Bugyal. Mm-hmm. हमारे पास जितना पैसा है हमें पूरा निकल के वहाँ माउंटेन परमिशन के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है पैसा मतलब परमिशन के लिए फिर जाने के लिए 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा वो परमिशन Yeah. लेने के लिए तो Oh. मैंने Yeah. फॉरेस्ट ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया था वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने मना कर दिया क्योंकि अगर कुछ हुआ ऊपर मेरे Yeah. ऊपर आता है क्योंकि हमारा Yeah. तुम्हारा पास एक परमिशन नहीं है कुछ भी नहीं है तो मैंने Mm-hmm. उनको रिक्वेस्ट किया था वहाँ गाइड को भी हायर करना बोल के बोला था मैं गाइड को भी हायर कर लिया उन्होंने डेली 1000 रुपीज दिया उन्होंने 3000 रुपीज पूछा है भैया मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है हम दे सकते हैं 500 रुपए दे सकते हैं डे फॉर डे Oh. So, एक आदमी के लिए 500 रुपीज दे सकता हूँ okay. हाँ. तो मैं Okay. So टोटल you were 1000 रुपीज तो Okay. उन्होंने चलो मैं नहीं आता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ मैं कुछ भी नहीं करता हूँ मैं नहीं आता हूँ अगर बिना गाइड उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं
Hmm. तो इन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, सर जी मैंने इतना दूर से आया था ये चढ़ने के लिए, कुछ 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 हेल्प कर लिए बोले तो इन्होंने Hmm. जो गाइडर है ना उनको मैंने 1500 के लिए कर डन लिया कर था। दिया। ओके। तो ये 1500 में 2 दिन लगे हैं मुझे। और शाम दोपहर में हमें स्टार्ट किया था उसी नीचे से वो पहाड़ शुरू करने के। टोटल इट्स अ 5 किलोमीटर, 5000 समथिंग पीक, 5000 Yeah, yeah, समथिंग yeah. Yeah, पीक। 5,000, yeah. 14, yeah, 14,000 feet. It's a हाँ 14,000 feet peak. Yeah. But ये that trek is also very steep, and very steep climb, steep trek in starting, because I went there, so I know that. While descending, how did you manage these things? Because while descending, knee पे और पैर पे ज़्यादा pressure आता है. So how did you यस। manage that? जब जब मैं पैर निकालता हूँ फिर लाइनर करना, वेट टिश्यू से पहुंचना पड़ता है, फिर रेस्ट Okay, लेना पड़ता है, फिर लाइनर पहनना पड़ता है। तो okay, ये प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें उतना ठंड में हमें इतना गर्म गर्म होता है, जब हमें चलने के टाइम में मेरा स्टमक गर्म होता है, right, ताकि उस right, टाइम right. में स्वेट निकलते हैं, उसी स्वेट से हमारा Hmm. पैर निकल जाते हैं। तभी हमें Hmm. निकल के स्वेट को पहुंचना है, फिर उसना ठंडा में हमें गरम गरम का पैर निकले तो बहुत ठंडा हो जाएगा, फिर लाइनर पहनने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। Hmm. मगर ये सब सारे पेन मेरा मेरा आगे बढ़ने के लिए, जब हमें इतना प्रॉब्लम बढ़िया प्रॉब्लम फेस करते हैं, आगे इतना इजीली जा सकते हैं। आई बिलीव इट, Yeah. सो आई स्ट्रगल दैट टाइम। हाउ आई कंप्लीटेड इन 2 डे, 1.5 डे। एंड Okay. ये बताना चाहता हूँ मैं, हमें ये दायरा बुग्याल के एक बेस कैंप रहता है वहाँ, 6 महीने ऊपर रहता वहाँ का पर. लोग, 6 महीने नीचे Hmm. रहता। सो Right, वहाँ right. काले किया था, एक शेड था, वो पूरे ऊपर से कुछ भी नहीं है, उसी में Hmm. हम लोग खाना बनाया था। दट्टू आइस, वहाँ पानी भी नहीं था, पूरा आइस मेल्ट करके Yeah, हमें yeah, खाना बनाया था। तो yeah. उसी जगह में सो गया। दैट वाज डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन लाइफ, Experience. Yeah, yeah, mountain life and yeah, experience. And that yeah. too I carried with 20 kgs of luggage with me. Oh, I that's carried a even land with me. hats off to you, sir, because 20 kg is not a small thing. Again, I'll say this thing, but I have to say this thing because you're talking so easily about those things. That I carried 20 kg and I climbed the Aira Bugyal and all these things. This is not an easy task. Let me tell you, our audience, that because of a sheer dedication only, and he wanted to reach the summit. That's it. That was Yes. that was his main aim and all these things. So hats off to you again, sir. And these mountain stories, like in mountaineering, we say this thing like every mountain is different. Even if you're climbing the same mountain, you will get a different experience. So these are the never-ending stories. अभी हमें एक प्रॉब्लम भी फेस किया था हमें। Yeah. अभी हमें एक प्रॉब्लम भी फेस किया था क्योंकि हमारा आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है. वेट वेट वेट, Okay. कैन यू हियर मी? Yeah. Go ahead. Yep. ओके। सो वहाँ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम फेस किया था कोई भी फेस नहीं किया आज तक। मेरे पास, हाँ, हम दोनों के पास एक पिकल का पैकेट है। हमें Okay. खाने का पूरा खत्म हो गया, हम क्या कर सकते हो, ये पिकल से मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारा गाइडर ने क्या किया, जो फ्रेश आइस लाके जो ऐसा गोल बना के उसमें पिकल डाल के वो गोल हमें खा। Oh. That was different That's experience of mountain life. yeah. Definitely. Yeah. So let's come to our topic. So when did you decided to climb the 7 summits and how did you go about it? कभी decide क्यों कैसे किया कि 7 summits अभी climb करना, and what was your, I think Kilimanjaro was your first peak. No, Kilimanjaro was my second peak, and my first Okay. peak was Mount Elbrus, Okay. Russia. So tell us the journey. When did you decide the 7 summits and how did you go about it?
One day I got a call from Mr. Bharat Boots and Crampons. Shekhar, we are Okay. planning to go Well, seven summits. So would you like to join with us? I said, ये सेवन समिट क्या होता है? सेवन समिट्स के बारे में तब तक मैंने एक मालूम है, एक ही माउंटेन मालूम है, एक एवरेस्ट है। मैंने मान लिया था। मैंने जब मैंने साइकिलिंग किया था पहले एवरेस्ट बेस कैंप किया था, वो एवरेस्ट बेस कैंप से नीचे से देख के ऊपर पहाड़ दिख रहा है, मैं उतना ऊपर कैसे भी जाना है जाना। वैसे भी right. वहाँ पानी बेहतर पानी जा रहे हैं, वो पानी और नदी में ऐसा जा रहा है, मुझे चिल्ला भी वहाँ मतलब जो चिल्लाए माला मैडम ने बहुत Right. चिल्लाया, किसके बारे में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ऐसा बिना परमिशन ऐसा जाएगा तो कुछ ना कुछ Right. होता है, कौन जिम्मेदारी है, ऐसा बहुत चिल्लाया था उस टाइम में। सो दैट टाइम आई डिसाइड कैसे भी हमें ऊपर जाना ही जाना। तभी मैंने मान लिया था हमें एवरेस्ट चढ़ना ही चढ़ना। बाद में एवरेस्ट Okay. के बारे में पढ़ रहे हैं, सब सारे वीडियोस देख रहा है। उस टाइम में भरत ने मुझे बोला था हमें माउंट एल्ब्रस जा रहे हैं, आप आ सकते हैं। Okay. So ठीक है, how आ that सकता हूँ, okay. मैं आ सकता हूँ। आ सकता हूँ, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, इसके प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, उतना पैसा नहीं। फर्स्ट बात यह है That's कि मेरे पास उतना finance. फाइनेंशियल इश्यू है, Yeah. फाइनेंस Right. के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। फिर भी हमारा जनता ने अभी तक जो किया मेरे बारे में, रियली हैट्स ऑफ टू देम, really Definitely. hats off to them. Keep motivating me there, keep motivating me there, keep encouraging me to do, you can do everything, Shekhar. So इनके थ्रू मैंने कैंपिंग पेज बनाया था, केटो पेज है। केटो पेज में 80,000 रुपीज आया था उस, और बगल में से सारे इंस्टीट्यूट वाले, कॉलेजेस वाले, विद्या भारती स्कूल्स वाले, रामकृष्ण मठ से बहुत पैसा मिला था मुझे, और एक लॉयर से भी मिला था मुझे पैसा। ये सब सारे Okay. पैसा लगा के मैंने एल्ब्रस को तैयारी हो रहे हैं। इसके बारे में भरत ने मुझे इंटरनरी भेजा था, ये खरीदना है, स्वेटर खरीदना Yeah. है, Right. Right. और डाउन जैकेट खरीदना है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। इसके बारे में शू खरीदना है, उसको क्रैम्पन्स खरीदना है, Right. वार्म Right. स्वेटर्स खरीदना है, ट्राउजर, ये सब कुछ बारे में मुझे नहीं मालूम मैं कैसे खरीदूँ। मैंने डेकथलॉन को गया था। Yeah. वहाँ डेकथलॉन में उनके जान पहचाने वाले, भरत को जान पहचाने वाले, उनके थ्रू मैंने सारे चीज़ों खरीद लिया, खरीद लिया। और कुछ इक्विपमेंट भरत के पास लिया था। सारे ट्रिप हो गए, और बढ़िया बात यह है कि मेरे फैमिली में माँ बाप को कन्विंस करना। अभी तक Right. इन लोगों को मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को समझ भी नहीं पाया, Oh. क्योंकि ये गांव में रहते हैं, उन लोग की नहीं मालूम ये साइकिलिंग क्या Right. होता है, Right. ये माउंटेनियरिंग क्या होता है, उनको Right. नहीं मालूम। ये करेगा Yeah. तो क्या होता है, क्या आता है। तो Right. मैंने एक्सप्लेन किया था, माँ मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये इसके बारे में Yeah. पैसा कहाँ से है। बहुत लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। माँ मैं हमारे जैसे आदमी, मेरे जैसे आदमी लोगों को मैंने और कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं सब कुछ करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ तो भी करना है। मैं ये करने के लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में जाके आया था। मैं अभी भी धरती में है, मैं कुछ करने के लिए जी रहा हूँ। Right. ये कुछ तो भी करना है जो नॉर्मल आदमी करना ही कर रहा। तो ये तभी मैंने फिक्स हुआ था, ये माउंटेन भी चढ़ना है। ये Okay. एल्ब्रस क्लाइंब करने के लिए हमें टीम है, 7 मेंबर्स का टीम है। दादा Yeah. अरुण दादा, भरत अरुण दादा, मैं, मेघा, सतीश, and Mahipal Reddy. Yeah. With 3 of. Yeah. Okay. Okay. So how was Sorry, how was Asha Dalwai also there. We are total Okay. 7 members team. Okay. So And yeah. Go जब ahead. गांव का आदमी जब फॉरेन जाएगा तो कैसे फील होता है। Okay. Yeah. तो So that मैंने was सारे another great experience. यस, तो मैंने
जहाँ जहाँ मैं देख सकता हूँ मैं सब कुछ देख लें। इसके बाद में मैंने ये डिफिकल्ट सिचुएशन स्टार्ट हो गए जब हमें एल्ब्रस बेस कैंप गया था। एल्ब्रस बेस कैंप जाने के बाद एक दिन रेस्ट लिया था। वह रेस्ट करने के टाइम में वो उस दिन रात में कितना विंड आया था, बहुत विंड आया था। मैंने डर गए ये विंड में हमें उठ के जाएगा, ये विंड हमारा उठा के लेके जाएगा बोल के मैं सोच रहा था। इतना इतना स्पीड से Yeah, yeah, विंड yeah, हो रहा है। yeah. I can तो understand. Yeah, एंड वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया था। एंड वहाँ सबसे बढ़िया क्या है कि हम फॉरेन फूड खाने के लिए मना uh, मना करते हैं क्योंकि हमें इतना तेज खाते हैं आदत यहाँ नहीं। हमारा Yeah, yeah, तेलंगाना में, हमारे इंडिया वाले। right. सो वहाँ Yeah. जाएंगे तो पूरा कच्चा बिट्टा खा रहे हैं, कच्चा कच्चा खा रहे हैं। हमें क्या कहता है उस टाइम में ये खाने के मन नहीं लग रहे हैं वहाँ। हमें चेफ बन गया उधर, मैं चेफ बन गया, सारे कुकिंग भी मैं ही किया था। ये सब Oh, लोग बहुत अच्छा yeah, है yeah, बिकॉज वी आर ए टीम। yeah. Right, 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 ये right. So, माउंटेन क्लाइंब करने के लिए टीम का सपोर्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है। अगर टीम का yeah, सपोर्ट नहीं करते हम कुछ भी yeah, नहीं कर सकते। yeah. So, सो yeah. वहाँ वहाँ Okay. हमें नेक्स्ट डे नाइट हमें प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें 10 लगभग 10-10:30 का हमें स्टार्ट किया था। मैं भरत तो Hmm. बेस कैंप से स्टार्ट हुआ था। और हमें वो इसका पहले हमें अक्लामेटेशन के लिए 2 दिन रुके थे, हमें बेस कैंप में 2 दिन रुके Mm-hmm. थे। ये Right. अक्लामेटेशन के लिए भी बहुत फेस किया था। इतना टन में वो क्रैम्पन्स पहन के मैं पहली बार चल रहा Right. हूँ, ये उतना Yeah. डाउन जैकेट पहन के। Yeah. कभी कभी वो Yeah. उतना गर्मी होता है अंदर, कभी कभी उतना ठंड लगता है, कब क्या होता है नहीं मालूम पड़ता है उस टाइम में। Yeah. सो ये माउंटेन ने सुबह रात को 10 बजे ऐसा स्टार्ट किया था। सुबह सुबह मैंने नहीं 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 एक्चुअली वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5-5:30 का हमें स्टार्ट किया था। फिर उधर जाए Okay. Yeah. एक्चुअली आई फॉरगेट अबाउट द टाइमिंग। Yeah. It's However, okay. It's okay, sir. Yeah. So, so मैं yeah, sir. सुबह हो गए वहाँ Reach पे. रिच पे नहीं उसको उपाइन को कुछ बोलते हैं जो Okay. Yeah, sir. Sir, I would like to stop you here सैडल and पॉइंट, सैडल पॉइंट, सैडल Saddle Point. पॉइंट, Okay. सैडल। Okay. वो Yeah. सैडल So, पॉइंट जाके हम लोग वहाँ रुके थे। yeah. तो कुछ Sir, जो लाया था वो एक चलो। yeah. Sir, first we'll stop for Elbrus for now and start with Kilimanjaro because Kilimanjaro was difficult one for you. You told in one of your interview. So please tell us about Kilimanjaro. We'll continue in Elbrus after the summit of Kilimanjaro. Yeah. ओके ये एल्ब्रेस मैंने अगस्त में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट 1 मंथ गैप करने के बाद अक्टूबर में मैंने किलिमंजारो को स्टार्ट किया था। किलिमंजारो Right. भी दूसरा टारगेट है मेरा। ये बढ़िया माउंटेन कंप्लीट किया था मैंने, और दूसरा माउंटेन भी कंप्लीट करना है किलिमंजारो के बारे में। सेम वैसे जो हम लोग को इसका पहले जब से मैंने शुरू से अभी तक जो सपोर्ट किया उन लोगों ने सपोर्ट किया था मुझे। Okay. वहाँ किलिमंजारो का भी प्रॉपर प्लान जब बूट्स एंड क्रैम्पन से कर लिया था। बूट्स एंड क्रैम्पन से एक्चुअली रियली इट्स अ फैमिली। रियली आई एम टेलिंग अबाउट द बूट्स एंड क्रैम्पन। Yeah. जो सब लोग मिलजुल के जो ट्रीट अस लाइक फैमिली। तो Yeah. कभी Yeah. हमें दिस इज माय सेकंड दैट वाज माय सेकंड ट्रिप ऑफ किलिमंजारो विद द बूट्स एंड Mm-hmm. क्रैम्पन। So Okay. different people, different type of mindsets and different type of places. Yeah. So Yeah. हम स्टार्ट करते हैं। हमें किलिमंजारो मैंने अक्टूबर 21 को मैंने हैदराबाद से मुंबई गया था। 22 मैंने किलिमंजारो एयरपोर्ट में लैंड हुआ था। वहाँ से हमारा जो पोर्टर्स आया वहाँ से लेके गए किलिमंजारो एयरपोर्ट से। तो वहाँ से हाँ कुछ प्लेस है वहाँ जा रहा था। वहाँ से मैं हमें नेक्स्ट एक दिन रुकने के बाद वहाँ से हमें मोरंगो रूट चूज किया था। मोरंगो रूट से हम 23 को मैं निकल चुका हूँ हमारे होटल से। मोरंगो रूट चूज किया था। मोरंगो रूट से वह नेशनल पार्क एंट्री होने के बाद हमारा सारे डिटेल्स देना है, सारे डिटेल्स हमें फिल किया था। वहाँ से लगभग शाम को 5:30 का हमें वहाँ से स्टार्ट किया था। उस टाइम में कितना बारिश गिर रहा है, बहुत बारिश गिर रहा है। रेन स्वेटर पहना था। फिर पूरा स्लिपर ही पूरा जंगल में जा रहे हैं जैसे
जो अंधे अंधे जो अंधे Yeah. जैसे जाते हैं वो तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसा ऐसा। फिर बहुत बारिश गिर रहे हैं, बार बार स्लिप हो रहे हैं। वो कभी कभी मेरा पैर में भी पानी जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस किया था मैंने। So how did you वहां से manage निकल के that thing? I अगर covered पैर, with my I wear my rain okay, pant, rain yeah, trouser that yeah, saved my leg. एंड yeah, मंदारा हट को रीच करने के लिए मैंने 5:30 को यहाँ से स्टार्ट किया था, वो लगभग जाएगा 10 बज गए नाइट। right, वहाँ से 23rd को वहाँ पहुँच गए हैं, 24th को वहाँ से निकल के होरम्बो हट। okay, होरम्बो हट इज लॉन्ग स्ट्रेच, आई थिंक 11 किलोमीटर फ्रॉम मंदारा टू होरम्बो। 11 okay. किलोमीटर पूरा जंगल में जाने, कुछ भी नहीं दिखता है पूरा। So, so, so the terrain was whole forest area, or there was a scree boulder terrain or something like that. पत्थर इट्स वाला. yes, it's a total terrain and some normal places भी हैं वहाँ। Okay, yeah, तो yeah. वहाँ से मैंने इन लोग के मुझे शेख भाई जो हमारे पास जो गाइडर्स थे, और शेख भाई शेख मिस्टर शेख बोलते हैं ऐसा। मुझे मजाक करने के टाइम 11 किलोमीटर कैसे कंप्लीट हुआ पता ही नहीं पड़ गया। Oh, 11 किलोमीटर चला है, उस टाइम में बहुत yeah, बारिश गिर रहा है, धूप है, सब कुछ है उस टाइम में। वहाँ से हम लगभग वहाँ से होरम्बो हट से 10:30 की इन द मॉर्निंग स्टार्ट किया था। वहाँ जाने के होरम्बो हट हमें पहुँच गया लगभग 3:30 तक पहुँच गए। तो quit time. 24 को वहाँ गया था, 25th भी वही रुक गया था। Okay, तो वहां जाने के बाद हमें देख रहे हैं पूरा क्लाउड्स हमारा ऊपर आ रहा है जैसे दिखता है, क्योंकि हम yeah, yeah, yeah. बहुत सी लेवल के Height. हाइट में हैं। You have achieved the height. Yeah, right. या वी स्टेड 1 डे देयर अक्लिमेटेशन के लिए। Mm-hmm. एंड 26 वहां से स्टार्ट हुआ था। 26 का नाइट, 26 सुबह 9 और 9:30 होरम्बो से कीबोहट गया था। कीबोहट इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर। Oh, वहाँ भी पूरा स्टीफ है, कुछ भी नहीं दिखता, पूरा forest. क्या बोलते हैं, एडारी, तेलुगु में एडारी जैसे दिखते हैं जो Okay. Forest area like. फॉरेस्ट एरिया, कुछ फॉरेस्ट एरिया और जो प्लेन है, कुछ भी नहीं दिखता, पेड़ ना दिखता, Oh, कुछ भी नहीं दिखता, oh, दूर। okay. हाँ, yeah. उसी Got रास्ते it. में हम जा रहे हैं, धूप हो रहे हैं, वहाँ पानी हो रहे हैं, बहुत फेस किया था उस टाइम में। वहां भी मुझे बहुत मजाक करते हैं। वो किलिमंजारो का गाना, किलिमंजारो का सॉन्ग है, वो किलिमंजारो का सॉन्ग गाना गाते गाते हमें निकल चुका। वहाँ जाने के लिए 6:30 को पहुंच गया वहाँ कीबो हट को। 6:30 को Okay. पहुंचने के बाद वहाँ लंच और डिनर सब कुछ किया था वहाँ। नेक्स्ट Right. ये सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि वहां से मैंने देखा था, माउंटेन देखा है तो ऐसा स्टीफ है, लाइक दिस Okay. बालकन, लाइक दिस स्टीफ है। Oh, मैंने yeah. पूछा था, वो शाम को देखा था, ये माउंटेन को कैसे चढ़ता है, कैसे चढ़ Right. सकते हैं ये माउंटेन को, क्योंकि पूरा टोटली Yeah, लाइक पूरा दिस, 90 degree steep. Yeah. हाउ कैन वी क्लाइम दैट माउंटेन। सो उन्होंने बोला था मेरे शेरपा ने, वी कैन गो बाय स्नेक लाइक दिस, वी कैन गो लाइक Okay. दिस, शेक स्नेक जैसे जाना पड़ेगा। तो वैसा मैंने 11:30 को मैंने स्टार्ट किया था। मेरा जो साथी है जो भावना, उन्होंने 12 o'clock को स्टार्ट किया था, मैंने 1 घंटा के पहले स्टार्ट किया था। वह मैंने वह 11:30 को स्टार्ट किया, 11:30 को स्टार्ट किया था। एक फोटो खींचा था हमें कैसे है वो सब कुछ, और निशाने के लिए फोटो खींचना था। बाद में जो उहरु नहीं है वो गिलमन स्पाइन के पहले हमारे पत्थर आता है, बड़ा बड़ा पत्थर आता है। वो पत्थर को जाने के टाइम में क्या हुआ, वो बर्फ पड़ा है। मैंने शू को क्रैम्पोस नहीं लिया था, हमें मान लिया है कि उतना बर्फ नहीं रहता बोल के सोचा था। Right, right. वहाँ बर्फ Right. नहीं बोल के मैं हमें ऐसी शेरपा का सपोर्ट लेकर मैंने गिलमन पॉइंट तक गया था। वहाँ गिलमन पॉइंट से हमारा त्रिवर्ण पताका ऐसा होस्ट करके एक फोटो लिया था। वहां से गिलमन पॉइंट से स्टेला पॉइंट है, स्टेला पॉइंट को 4 किलोमीटर रहता। वो 4 किलोमीटर जाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो गई है, क्योंकि मेरे पास उतना स्टैमिना नहीं है।
I lost my grip, energy. right? ग्रिप भी नहीं है, आई And लॉस्ट माई grip एनर्जी. भी नहीं है, right, 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 ग्रिप भी नहीं है क्योंकि मैं एक ही हाथ से, एक ही पैर से, एक ही स्टिक से right, right. करना पड़ता है. अगर मैंने लेफ्ट साइड से स्टिक पकड़ के जाएगा तो राइट साइड गिर जाऊंगा क्योंकि वो स्टीफ है, राइट साइड है, तो Right. स्लोप है, राइट साइड है. अगर मैं जाएगा तो मर जाता हूँ, पक्का मर जाऊंगा. तो ये है मेरे दिमाग में, यही चल रहा है. मेरा पॉइंट है गिलमन पॉइंट, नहीं उहरू पीक है मेरा टारगेट है. उहरू पीक कैसे भी जाना है जाना. मैं 10:30 को वहां से 6:30 वहां से जाने के लिए, और लगभग 1.5 घंटा लग गया गिलमन पॉइंट टू उहरू पीक जाने के लिए. 1.5 घंटा लग जाए. फिर वहां से स्टेला पॉइंट को जाने के लिए मुझे मेरा शेरपा ने किया था क्रैम्पॉन्स के लिए. बहुत सब जो उन लोग के टीममेट्स है ना, उनके पास पूछ के मेरा क्रैम्पॉन्स लाया था. वो क्रैम्पॉन्स पहन के मैंने स्टेला पॉइंट को गया था. स्टेला पॉइंट से फिर स्टेला पॉइंट से मैंने उहरू पीक जाने के लिए मेरे 4 घंटा लग गए. 4 किलोमीटर जाने के लिए 4 आवर्स लग गया मुझे क्योंकि आई Oh, लॉस्ट माई एनर्जी. मैंने yeah, yeah, yeah. 11 o'clock का मैंने खाया था. वहां भी जो दिया था क्या है वो, कुछ चिकन, रोस्टेड चिकन दिया था. वो Okay, खा के yeah, खाने के लिए मन नहीं लगा था उस टाइम में. मगर मेरा ड्रीम इम्पोर्टेंट है, जो भी होने yeah, दो. वहां जाने के बाद हमारा इंडियन फ्लैग होने के, होस्ट करने के, कुछ भी होने दो. तो ये मान के right. हमें उनका सपोर्ट लेकर, उनका हाथ शोल्डर ऐसा पकड़ के हमें चल के गया था. Yeah, और उहरू पिक जाने के बाद मेरा फायर निकल के ऐसा मेरे खड़ा yeah, के yeah. ऐसा We मेरा have लेग that निकल photo. के Yeah, मेरे. Yes, that was a yeah, different experience of my life. I achieved something. I achieved yeah, something in my life. yeah. So, That's a wonderful story because you are truly inspirational, sir. Because again, that without crampons, with your prosthetic legs and all these things, you have done so many and things. So that too, I yeah. don't have proper foot strength also for my right foot. Oh, so it's really amazing. I was reading one of the quotes that heroes are born heroes are born not during the times of ease. They are born in a difficult time. So you are the perfect example for this. It was really great pleasure of having you on this Instagram live because we have the time limit of 1 hour only on Instagram live, so we have to end it. But sir, he has many different stories and he come live on various platforms. So do tune in for him as well because he has lot many stories to tell. And now we have the time constraints, so we have to stop here. So anybody has any questions, we can take one question for you, sir. If anybody has any questions, so anyone can tell us. So Sure. let's skip that thing. What is your message? What message you would like to give to our youth? Hello. Can you hear Hello? me? Yeah. Go ahead, sir. So I got my internet is gone. Yeah. I can see that. Is gone. Yeah. So what message you would like to? So if you want to do anything, if you want to do something in your life, just focus on it. Just cross your limits to reach your goals. Just never give up in your life. If your head and heart is straight, you can conquer the world. So break your limits to reach your goals, and don't attempt the suicide. We don't have the rights to attempt the suicide because I'm seeing many people whoever attempting suicide. I'm quite opposite about for suicides. Please don't lose your hopes and don't spoil your wonderful life. I did this much impossible things I did. You also can do more than me. Just focus on your dreams. Keep up. That's a great session, sir. That's a great session. That's a great message. We are thank you to having on our Insta live session. You are a part of a family, so it's a wonderful to talk with the family always. So thank you for coming once again.